Hello, my friend. Welcome. So, in this session, we are going to see the IBPS ASSO prelims examination of last year. So, here we are having the English, reasoning, and quant. So, this is a memory-based paper, and here we are having some questions. So, all 50 questions we are going to see step by step. And before moving ahead, then we are having the pre-exam. In that, your pre-exam, we are having the English reasoning, and then we are having the quant. So this is for applicable for IT officer, agriculture field officer, HR, or your marketing officer. So and for law officer and Rajbhasha, the English and the reasoning, the questions are same. So ऐसा ऐसा नहीं होगा कि there will be a different question. Question will be same, but here we are having the quant and they are having the general awareness. So first we are going to look at the English. So before moving ahead, there's a one thing that I want to show you here is your exam level. So exam level is, in my opinion, it will be little bit medium to high level. So you can say exam level will be in between medium to high level. It will not be easy level. So you need to prepare according to it also. Okay. So yes, in out of three sections. So in your examination, when you are going to give the real paper, उसमें होगा क्या? Out of three section, one section will be easy and one section will be यू कैन से डिफिकल्ट। तो जो इजी रहेगा उसमें आपको कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा स्कोर कर सको। हो सकता है इन योर एग्जामिनेशन इंग्लिश इजी आ जाए या रीजनिंग इजी आ जाए या कौन, बट इन तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन आपका इजी रहेगा, मतलब जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट ओवरऑल जो आपका रहेगा पेपर वो आपका मॉडरेट टू हाई लेवल के बीच में ही रहेगा। इट नॉट विल बी इजी। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका कम जाता है। ओके, तो यू नीड टू गिव द आंसर ओवर here. So whichever answer you need to give here, and let's start the can say memory based paper. So I hope you are well prepared about the English. So most of you जितने भी आप student हो, so you are basically from English medium school. तो English में आपको इतनी बहुत ज़्यादा problem I don't think so you are going to face. So let's see the question and then you will have an idea. So this is only a memory based paper. इसमें कोई ऐसा स्कोर हम नहीं देख रहे हैं। तो इससे होगा कि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन रहता है। ओके, so first we are having the first question. So in that five options are given and should be grammatically and structurally correct. Please note the meaning and the context of sentence must not change. अब इसमें पूछा कि ये जो फाइव या फोर सेंटेंस गिवन है इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो एकदम सही है। ठीक है, अब देखो जो स्टेटमेंट वन है, आई गेव हिम 5 डजन बनानास। तो जब यहाँ पे आपका कोई फाइव लग जाता है, कोई न्यूमेरिक आता है, उसके बाद में आपका एस नहीं आता है, तो इट विल बी 5 डजन। तो जैसे ये आपका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर विल बी वुड। तो यहाँ पे इसका explanation है which is also given over here. ठीक है, so let's move ahead to the next question. This is the next question. So now you need to give the answer कि in your opinion what is the right answer for this question. So a 1 2 3 4 5 like this you can type 1 2 3 4 5 according to you. So जो question A है या A B C D, in your opinion what is the answer of this question? Just read the question and just give the answer. So anyone want to give the answer? Uh, Just read the question and in your opinion what is the answer you can give. स्टूडेंट ने बी कहा है। Let's see B over here. So answer will be the first option. Some animals could not adapt the changing environment. So in this sentence, there is no
grammatical error. Moving to next question. यहाँ पे क्या है, just read the question again. Choose the option which has an error. You need to find the error. So किसी ने आंसर दिया है B and C. The investigation not there. So here there is no error in this question. So all are correct. Okay. So there is no error. So all are correct over here. Moving ahead. Next question. Just give the answer. Whatever answer you know, just give it. C. ये आंसर आया है स्टोरेज नो आंसर विल बी द डी नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो नाउ वी हैव ऑब्जर्व दैट फोर क्वेश्चन 1 2 3 4 तो जो आपके फोर थे क्वेश्चन अब ये जो आपके फोर क्वेश्चन थे दे आर एरर स्पॉटेड सो इफ योर ग्रामर रूल्स आर गुड अगर आपके जो ग्रामर रूल्स आपको अच्छे से आते हैं तो ही आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए अदरवाइज यू कैन स्किप इट ठीक है so now we have seen the four question which were asked from the grammar base only okay moving ahead fifth question now this is a RC based question so this is what this is a complete RC based question in this you need to read the RC and you need to give the answer okay so I will scroll down so यहाँ पे just read from over here and after a few moment I will scroll down so there are two approach to solve this question तो आपका ये जो आरसी वाला क्वेश्चन है इसके दो अप्रोच होते हैं अप्रोच वन होती है कि जो आपका आरसी है आप इसको कंप्लीट रीड करो ठीक है मैंने आरसी पूरा रीड कर लिया उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इनको आप रीड करो और उसके बाद में आप हो सकता है कि ये जो वापस रीड किया इसको दोबारा रीड करके यहाँ से आंसर निकालो ठीक है अप्रोच वन ये होगी अप्रोच टू ये होती है कि हम जो क्वेश्चन है इनको रीड कर लिया जैसे क्वेश्चन है इसको रीड कर लिया ये क्वेश्चन है इसको रीड कर लिया ये क्वेश्चन इसको रीड कर लिया ये क्वेश्चन रीड कर लिया ये क्वेश्चन रीड कर लिया और ये वाला जो क्वेश्चन था रीड कर लिया ये वाला क्वेश्चन रीड कर लिया ये क्वेश्चन रीड कर लिया मतलब यहाँ पे वर्ड मीनिंग है ठीक है अब मैंने जितने भी थे क्वेश्चन इनको मैंने रीड कर लिया अब इन माई आंसर शीट जो मेरे पास जो आंसर शीट होगी उसमें मैं क्या करूंगा जो जो क्वेश्चंस है उनका एक शॉर्ट फॉर्म लिख लूंगा ठीक है अकॉर्डिंग टू द पैसिव सेक्टर शोन तो ये जो क्वेश्चन है इनका कुछ शॉर्ट फॉर्म में इन माय आंसर शीट जो आपके आंसर शीट होगी उसमें मैं क्या करूंगा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा फिर मैं क्या करूंगा इसको रीड करूंगा तो जहां पे वो वर्ड मैच हो जाएगा मैं आके उसको टिक करूंगा तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो ही आप अप्रोच टू को फॉलो करो अदरवाइज अप्रोच वन इज गुड अदरवाइज आई विल रिकमेंड अप्रोच वन इज गुड आरसी को रीड करो फिर क्वेश्चंस को लगाओ तो ये क्लासिकल अप्रोच है बहुत लॉन्ग टर्म से यही अप्रोच मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि आप आरसी रीड कर लो फिर आप क्वेश्चन को लो तो यू जस्ट रीड ओवर है यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक रीड करो एंड आफ्टर दैट आई विल स्टॉप
Okay, so I believe you have read this passage. So it is all about Indian economy. तो अपना जो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसी के ऊपर है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। तो व्हाट एवर द आंसर यू नो, यू जस्ट टाइप ओवर हियर कि मान लो आपका आंसर डी आ रहा है, तो जस्ट गिव द आंसर डी ओवर हियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द passage. So this question you can solve very easily just by reading. अब इसमें क्या आपने इसको रीड किया है, तो वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दोबारा यहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन को वापस यहाँ जाके उस लाइन को ढूंढते हैं कि यार वो लाइन लिखी कहाँ है, देन वी ट्राई टू मैच। बट ये जो क्वेश्चन है, आपने बस रीड किया, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से आपको एक आइडिया देना है कि व्हाट इज द टाइटल और दिस दिस होल पैसेज इज अबाउट। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो अब मैंने ऐसे रीड किया आपके इन इन फ्रंट ऑफ यू, उन्होंने देखा कि यार ये जो है, ये मेनली अपना जो इकोनॉमिक है इसी के ऊपर रह रहा है, तो अब ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो जो आपका इकोनॉमी वाला आंसर है, तो दिस इज राइट। ठीक है, सो लाइक दिस यू नीड टू ऑल्सो गिव द आंसर। शुभम ने आंसर दिया है डी एन ई। ओके शुभम, गुड। तो इनका भी आंसर आ गया है सही। तो लाइक दिस गाइस यू ऑल्सो गिव द आंसर। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें भी आपको दोबारा जाके इस पैसेज को रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बार रीड किया, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से आपको एक टाइटल देना है। आपको अपने इन योर ओपिनियन, इन योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको इसको एक टाइटल देना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो आपका जो आरसी रहता है, उस आरसी में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है। अ, ये कहाँ शुभम कुमार का फिर से आंसर आया। ओके, अब देखो बिफोर मूविंग अहेड दिस, अभी अपन ने यहाँ क्या देखा? हमने देखा कि यार आराम आराम से आपके आ गए हैं क्वेश्चन। इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं। अब देखो इंग्लिश में रहता क्या है कि जिन स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है, जिन स्टूडेंट की मान लो इंग्लिश वीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है आर्ट्स। आपके एग्जाम में दो आरसी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आरसी मान लो आपका 6 क्वेश्चन का है या 8 क्वेश्चन का आपके आरसी आ गए, तो आपके 14 क्वेश्चन तो आपके आरसी के आ गए। तो 50 में से अगर आप देखोगे तो 14 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज होता है। इन सम एग्जामिनेशन 3 आरसी भी आ जाते हैं, किसी एग्जाम में 3 आरसी भी आ जाता है। अगर आपके 3 आ गए आरसी, मान लो एक और आरसी आ गया, तो 6 क्वेश्चन क्या है, 6 6 8 आपके यहाँ पे आ गए क्वेश्चन का, तो आप कह सकते हो कि 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, और वी कैन से 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपका सिर्फ आरसी आरसी से आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस रीड करना है। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आरसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है वोकैब का। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, इफ योर वोकैब इज गुड, तो आपके आरसी में से फुल भी आ सकते हैं। अगर आपकी आरसी अच्छी है और उसके बाद वोकैब भी अच्छी है, तो फुल में से फुल आता है। अदरवाइज ये जो मान लो कि आपका आरसी 14 मार्क्स का है, तो 14 में से मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चन तो सब स्टूडेंट के सही होंगे ही होंगे। 8 जो क्वेश्चन है वो मिनिमम आउट ऑफ 14 सब स्टूडेंट के सही हो जाते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज गिव द आंसर। आपके अनुसार जो भी आंसर था आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो अभी शुभम ने आंसर दिया है इंडियन इकोनॉमी, तो हमने इसको टिक कर दिया, यस, सो दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर फ्री के हो गए, फ्री के आपके 2 नंबर हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच सेक्टर शोन a quickening in the growth of the precedent month?
किस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि कुछ कुछ जो अलग अलग सेक्टर है वहां पे एक बार आपको दोबारा देखना पड़ेगा कहाँ पे ग्रोथ हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स गिवन, अगस्त में आपका ये था, इसके बाद आपका देखो कि यहाँ पे आउटपुट ऑफ द फ्यूल रोबस्ट 16.1 पेज फ्रॉम अगस्त 17.9 टू पोस्ट 1.5 है सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे अपन देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो आपके जो वर्ड है उससे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि 4% लेस यहाँ पे कुछ कंपनीज की हो रही है, बात हो रही है। तो यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा अपन को यार इस चीज का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हल्का सा हो सकता है कि आपको आरसी को देखना। अब देखो आरसी में होता क्या है, दो चीजें होती हैं। आरसी में दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आरसी का जो पैसेज है, जो उसने लाइन लिखी है, वो आपका जो वर्ड्स उसने जो यूज किए हैं वो आपके हाई हाई मतलब हार्ड लेवल का आ जाए। अगर ये हार्ड आता है तो जो आरसी की जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके इजी लेवल के रहेंगे। इन दोनों में से एक चीज होती है, या तो जो आरसी है उसमें जो उसने वर्ड्स यूज किए वो हार्ड होंगे तो क्या होगा, आपका आरसी इजी हो जाएगा। और क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। अगर उसने ये वाला इजी कर दिया, अगर जो उसने जो दिया है पैसेज वो इजी दे दिया, तो वो क्या करेगा, जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा हाई लेवल का कोशिश करेगा इनको हाई लेवल करने का। ठीक है, तो यहाँ पे यही रहता है आपका आरसी के अंदर। ठीक है, एनीवन ABCDE। तो यहाँ पे शुभम का आ रहा है फर्टिलाइजर, ओके। अपन ने इसके लगा शुभम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शुभम के 3 नंबर आ गए, ठीक है। सो ऑल्सो यू नीड टू गिव द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे देखो, फैक्ट्री सॉ न्यू ऑर्डर राइज एट द स्लो पेस इन द, ये देखो ये लाइन ये रही आपकी, फैक्ट्रीज सॉ न्यू ऑर्डर राइज एट द स्लोएस्ट पेस इन द ईयर। तो अब ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब निकलता है, इसके लिए सबसे बढ़िया है एक सेंटेंस ऊपर आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट कर लो दोबारा रीडिंग, और एक सेंटेंस नीचे आ जाओ, यहाँ तक आप एंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसको रीड करना है। मुश्किल से आपका 30 सेकंड लगेगा, हो सकता है कि 40 सेकंड लग जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रीड करना, 40 सेकंड लगेगा। और फिर आपका आंसर जो उसके बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी, आपका आंसर सही हो। डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड इज डिक्लाइन। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नाउ ये जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज टू बी ट्रू। अब ये जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इन दिस वी कैन हैव अ प्रॉब्लम ओवर here। यहाँ पे जो वर्ड्स जो सेंटेंस है इसमें आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना। हेयर यू डोंट नीड टू यूज योर ओन ब्रेन। वट एवर इज रिटन इन द आरसी, उस आरसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे मूव करता हूँ। तो आई बिलीव अब आपको आइडिया लग गया है कि आरसी को कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें वर्ड मीनिंग रहता है, जैसे सॉफ्टनिंग इकोनॉमिक मूवमेंट। तो इसमें क्या है कि आपके पास में टाइम कम है। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल ये है कि बहुत बार होता है हमारे पास में टाइम कम है, इफ टाइम मान लो लेस है। मान लो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैंने नोटिस किया कि यार मेरे पास मान लो कि सिर्फ 5 मिनट बचे। मान लो कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे रिमेनिंग है। अब मेरे पास एक कंप्लीट आरसी, एक कंप्लीट आरसी मेरे पास में रखा है। अब बहुत कम चांस होगा कि मैं उस आरसी को रीड करूं और ही करूं, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस भी है। अगर मान लो कि आपके पास मान लो कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, या आपके पास मान लो 2 मिनट बचे हैं, और एक आरसी रह गया, एक आरसी रह गया है विच इज लेफ्ट। अब क्या करना है, उस 2 मिनट में आरसी को रीड नहीं करना। यू डोंट नीड टू रीड द कंप्लीट आरसी इन द लास्ट 2 मिनट।
लेट सपोज एक आरसी रह गया है, तो हेयर आपको क्या करना है कि उस आरसी में वो वर्ड ढूंढने हैं जिनका सिर्फ एंटोनम या कुछ वर्ड में, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू डोंट नीड टू रीड द कंप्लीट पैसेज। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा जो है उसको रीड करने की जरूरत नहीं है आरसी। आपको क्या है ना, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को यहाँ पे ढूंढना है, ये कहाँ लिखा है, ये देखो ये रहा, सॉफ्टनिंग इन इकोनॉमिक मूवमेंट, ये वर्ड लिखा है। इसमें कुछ नहीं करना, एक सेंटेंस ऊपर जाना मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, एक सेंटेंस नीचे आना मतलब यहाँ तक एंड करना है। यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक रीड करना है, इसमें हो सकता है कि आपको 40 सेकंड लगे, 45 सेकंड लगे, इतना रीड करना है, उसके बाद मुझे आंसर लगाना है। सो दिस इज अगेन अ ट्रिक। देखो सॉफ्टनिंग इन इकोनॉमिक मूवमेंट ये मुझे मिल गया, वापिस एक सेंटेंस ऊपर जाऊंगा, एक सेंटेंस नीचे होगा, इससे बहुत ज्यादा चांस होगा कि मेरा जो आंसर है वो सही होगा। देखो ऐसा नहीं है कि जिसने रीड किया आरसी, जिसने कंप्लीट आरसी रीड किया उसका और ज्यादा चांस होगा कि उसका आंसर सही है। बट जिस स्टूडेंट के पास मान लो टाइम नहीं है, तो स्टूडेंट के लिए एक अच्छा रहेगा कि हाँ यार ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे आ गई। यहाँ पे किसने आंसर दिया है इसका, डिक्रीज इन इकोनॉमिक, शुभम ने आंसर दिया है। decrease in- ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन शुभम का आंसर सही है, वेरी गुड शुभम। नेक्स्ट, नाउ इफ योर वोकैब इज गुड, अगर आपकी वोकैब गुड है तो ये क्वेश्चन आपके लिए, बोलते हो ना चेरी ऑन द केक, तो दिस इज फ्री आंसर, फ्री मार्क्स फॉर यू इफ योर वोकैब इज गुड। If your vocab is not good, then what you can read? One sentence above, one sentence below. Just read and try to figure out what is can be the meaning of the sentence. अगर vocab अच्छी है तो आपको आर से देखना ही नहीं है। अगर vocab अच्छी नहीं है तो एक सेंटेंस ऊपर आ जाओ, एक सेंटेंस नीचे आ जाओ, और वो जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप रीड करो। तो आंसर आएगा। क्या बात है शुभम, मुझे यहाँ पे फुल में से फुल नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट, रोबस्ट, ये एकदम इजी है, ये इसका आंसर हर कोई देगा। तो दिस इज अ वन, शुभम का आंसर है क्या? ओके, एनी अदर स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आफ्टर शुभम कह रहा हूँ रोबस्ट। ये फ्री मार्क्स है, जिसको कुछ नहीं आता ना इंग्लिश का, जिसको कुछ नहीं आता वो इसका आंसर आराम से दे सकता है। क्या रोबस्ट का एंटोनम पूछा है? रोबस्ट मतलब क्या चीज होती है, मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज मजबूत है। रोबस्ट जैसे, आई मेड अ सॉफ्टवेयर विच इज रोबस्ट, आई मेड अ सॉफ्टवेयर फॉर द टीसीएस विच इज बीइंग यूज्ड बाय आईबीपीएस, आईबीपीएस का जो सॉफ्टवेयर है वो एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत। अब इसमें एंटोनम पूछ रहा है कि यार इसका एंटोनम क्या है। तो शुभम एंड कुणाल, विकास यू ऑल्सो ट्राई टू गिव द आंसर। तो देखो आप आंसर दोगे तो इट विल बी गुड फॉर मी, मुझे भी गाड़ी लगेगा, आपको लग रहा नहीं पता फ्रेजाइल। तो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन टिल नाउ, अब तक अपन ने जो क्वेश्चन देखा उसमें जो फ्री का जो क्वेश्चन था ये आपका था फ्री वाला क्वेश्चन। यार फ्रेजाइल है, आराम से टूट जाएगा। नाउ दिस, which term is used in the passage to refer the decrease or decline, especially after a period of activity। अब इसमें यहाँ पे इसने एंटोनम यूज किया हुआ है, एक सेकंड लेना। हेलो, मैं भेजता हूँ आधे घंटे में। यहाँ पे किसने
Just a second. Second map आ गया है। So I hope now we are back. So I will share my screen. Which term in the passage refer to the decrease or decline, especially period of activity? देखो, वर्ड मीनिंग से भी आप निकाल सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब ये है आपका कंप्लीट वोकैब बेस। अगर वोकैब अच्छी है तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कंप्लीट वोकैब बेस है। इसमें आपको कुछ भी नहीं, नया नहीं करना है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग न्यू ओवर हियर। तो दिस इज कंप्लीट वोकैब बेस। ई कुणाल का आंसर ई आ रहा है। ई या ई में विकास का ए आंसर है। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोशिश करनी है। देखो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपके हिसाब से क्या होगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हम एंटोनम और सिनोनम रीड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, यहाँ पे एंटोनम पूछ रहा है, इसका अपोजिट पूछ रहा है ये। कोई इसका भी वर्ड बताओ। अब जैसे आपने यहाँ पे ये बताया, इंकरेज बताया, तो यस, इंकरेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या इनका आंसर भी गिवन है, या कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक्सपल्शन एकदम इजी क्वेश्चन है। मतलब किसी को निकाल दिया है आपको, मतलब एक्सपेल कर दिया, मतलब ये जो मीटिंग है इससे मैंने आपको हटा दिया है। सो अब क्या पूछ रहा है, एंटोनम पूछ रहा है। भैया आपको किसी ने बाहर कर दिया, इसका एंटोनम क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हर किसी का आना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड होंगे आपके। ये जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन तो आराम से इजी होंगे, जो आप ढूंढ के कर सकते हो। मतलब 10 क्वेश्चन तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो 50 में से। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता कि 50 के 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दे वो आप। एक्सपल्शन, इंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे आपका सी और सी आ रहा है, गुड। इंक्लूजन आपका राइट आंसर है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्ड्रासिटी। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप बोल सकते हो गैस वर्क भी काम करता है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, सिनोनम पूछ रहा है। अगर मान लो आपको यहाँ पे तुक्का लगाना भी है। अब यहाँ पे आप देखो, RITY सिटी लिखा है। तो इसका जो आपको सिनोनम, मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड भी हम लगा सकते हैं, जो दूसरा वाला है, रिट सिटी, सैलरी टू। तो मिलता जुलता भी आपका बहुत बार होता है कि जो वर्ड मीनिंग में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार, मुझे फील आ रहा है कि ये इसका आंसर सही हो सकता है, तो आप वहां पे ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है। मूविंग अहेड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे सिर्फ मीनिंग पूछ रहे हैं वर्ड का। ये कंप्लीट वोकैब है, इसमें कोई भी मतलब अपना गैस वर्क नहीं लगाना है। अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अदरवाइज स्किप इट। हर क्वेश्चन में अपन को हाथ नहीं लगाना है। अगर आता है क्वेश्चन तो अपन सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो वी विल स्किप इट। 18 क्वेश्चन का शुभम का ये आ रहा है। बी का मीनिंग तो लेट होगा।
यस। ये तो आई डोंट नो ये तो मेरे को भी नहीं आता है। तो शुभम यही कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। तो मेरे को नहीं आता है। द स्टेट ऑफ बीइंग सुप्रीम पैरामाउंट पोजीशन, पाइनियर वी कैन से। ओके। फैब्रिकेट, ये तो मेरे को आता है। विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द, अच्छा एंटोनम पूछ रहा है क्या, ये उल्टा पूछ रहा है। फैब्रिकेटेड का उल्टा क्या होगा, आराम से कोई चीज टूट जाए, और एक और मतलब आ गया कुछ भी हो गया, उस दूसरा क्या होगा, मजबूत, तो उसको कुछ वो कर रहा है, डेमोलिश टाइप। मतलब एकदम इजी सा है ये, आपका भी आंसर सही आएगा। तोड़ना तोड़ना, यस शुभम गुड। यहाँ पे विकास का भी आंसर है, वेरी गुड विकास। कुणाल का थोड़ा सा रॉन्ग, यस शुभम का भी आपका राइट आंसर है। ओके गुड। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस थे, अब यहाँ से आपका आंसर आ रहा है रीडिंग के ऊपर। कुछ नहीं करना है, इसको बस रीड करना है और अपने हिसाब से टिक करना है। इसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन। ठीक है। ये जो अंडरलाइन है इसकी बात हो रही है, फाइव अल्टरनेटिव गिवन एज द अंडरलाइन पार्ट विच में इंप्रूव द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमें क्या करना है, सेंटेंस का मीनिंग इंप्रूव करना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन corresponding to it. In case no improvement is in it, click the option no improvement. हमें कोशिश करनी है इस वर्ड को इम्प्रूव करें। आई एट नथिंग सिंस इवनिंग। अगर आपको लगता है कि यार इसमें कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट का। आपको लगता है कि नहीं यार कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई आप लगा के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। कोशिश करनी इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करो। अब देखो इसमें अपन यहाँ क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। अब देखो अगर मैं ए ऑप्शन लगाऊंगा, आई हैव ईट नथिंग फॉर इवनिंग, तो ये मैच ही नहीं हो रहा। ये जो ए ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ए तो बिल्कुल नहीं होगा। आई एट नथिंग सिंस, तो यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। एट कब था, इसने ईट कर दिया, कोई मतलब नहीं है। अब ये पता है हैव के बाद आपका होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यूजुअली क्या होता है, हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे एट लगा सकते हो, या इसने एटन कर दिया। तो ये जो तीसरा वाला है ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि यार ये आंसर ठीक हो सकता है। तो ऑप्शन ए का सी, तो आपके हिसाब से क्या रहा है, उन्होंने सी हो सकता है। सर सी इज द आंसर। ओके शुभम का कुणाल का सी है, ठीक है। सो विकास का भी थोड़ा सा सही है, ठीक है। नाउ सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। सो द 50% student have given this question as the right answer. Next question. My sunglasses is made in India. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. My sunglasses India. My was तो देखो सन ग्लासेस है, दो है। अगर एक होता तो हम यहाँ पे वॉज लगाते, यहाँ पे ज्यादा है, सन ग्लासेस है। तो दिस इज अ प्लूरल वर्ड। अब जो प्लूरल है उसके लिए हम वर लगाते हैं, यहाँ पे वर मेड इन हो जाएगा। ठीक है। सी सी सी, देखो यहाँ पे सबका आंसर, विकास का भी क्या बात है, विकास का आंसर सही आ गया। शुभम का थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, प्लूरल के साथ वर। यस यस, वेरी गुड विकास। तो यहाँ पे योर योर कंसेप्ट इज क्लियर।
देखो कुछ क्वेश्चन फ्री के होते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस था, तो आपने थोड़ा बहुत भी रूल्स ऑफ ग्रामर देखें, यहाँ पे आपको लग जाएगा भैया, जो सिंगुलर है सिंगुलर के साथ वाज आता है, जो प्लूरल उसके साथ फिर वर आता है। ही इज द बेस्ट ऑफ टू रेसलर। ही इज बेस्ट ऑफ टू रेसलर, दो रेसलर का बेस्ट ऑफ फ्रॉम होगा ना, ही इज बेस्ट फ्रॉम टू रेसलर, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ई ई ई आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसने कहा है द बेटर ऑफ, ही इज बेस्ट ऑफ टू रेसलर, ठीक लग रहा है मेरे को भी, ई लग रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। One is chosen out of more than two or all. The superlative degree is used and preceded by the, followed by of. He is the best of the three or all the wrestlers. Okay. So when we are having this word, so here we are using the superlative degree. तो उसके हिसाब से इसने कहा कि the better of use होगा आपका। ठीक है। Moving ahead, no problem. Next question. She doubt. क्या बात है, विकास ने यहाँ पे टिक भी लगा दिए बैटर के साथ। देन लगता है डी कह रहे हैं। क्या बात है, ये भी आपका एक ठीक आंसर था। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेंटेंस की बात हो रही है। समथिंग स्पेशल, क्वीन ऑफ द फ्लावर्स। तो यहाँ पे समथिंग स्पेशल ओवर हियर, सो इंस्टेंट देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। एन रोज, एन नहीं लगता आपका, जो वोवल के आगे लगता है, तो एन इज रॉन्ग। रोज इज कंसिडर द क्वीन, रोज आर नहीं। द रोज इज, ये मेरे को ठीक लग रहा है, द रोज इज मेरे हिसाब से ये है। आपका क्या आंसर आया? ए बी सी डी ई सी, क्या बात है, सी एंड डी। ओके, मूविंग अहेड। अब अपन ने यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया, वी हैव सीन द फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। So there are two type of sentence rearrangement. First, he will give you can say some small portion. He will ask. Otherwise, he will give you five sentence. Then he will ask. So this is easy one. एक easy दे दिया है। एग्जाम में इतना easy नहीं आता है। यूजुअली हो सकता है कि ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट इजी आ जाए, रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके हार्ड आ जाए। अभी अपन ने देखा आरसी जो लेवल था वो आपका अच्छा लेवल था, तो यहाँ पे इसने इसको इजी दे दिया। अब अगर ये इसने इजी दिया है तो आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको हार्ड कर देगा। तो ये है, आई विल गिव यू 2 मिनट, इसमें 2 मिनट लो और आपको कुछ करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस स्टार्ट किससे करना है। सीढ़ी है यहाँ पे, ये कह रहे हैं।
डी या बी से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस। जो आपका सेंटेंस है वो आपका बी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो आपका फाइनल जो आपका जो है सेंटेंस से आपको देख लो पता लग जाएगा आपका। तो ये आपका रीअरेंजमेंट आ रहा है। ठीक है। आई विल जस्ट वेट 1 मोर मिनट। ठीक है। तो एक आप रीअरेंज तो आपका जो भी आंसर आ रहा है आप यहाँ पे आंसर लिख देना। A B C D E जो भी आपका आंसर आ रहा है। जैसे विकास ने लिख दिया है B C D A E। जो भी आपका आंसर है। तो B A B D A B D A ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग द सेम आंसर B D A। ये आपका आंसर B D A E C। ठीक है। तो ये जो आपका अगर सेंटेंस अरेंजमेंट ठीक हो गया तो आपको ये 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है 5 नंबर मिलेगा। अगर ये सही हो गया अगर रॉन्ग हो गया तो ये आपका नेगेटिव कर देगा। अब मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग है और कुछ नहीं है। A D C D B F या C E। C D and C। C D आंसर आ रहा है। ठीक है। तो CD is the right answer in the past decade. Such action response has become the completely unknown। ठीक है। Yes। Next, match the following। ये आपका थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट था वो इजी था। अब इसने अब क्या कर दिया इसको हार्ड कर दिया। ये जो मैच द फॉलोइंग है इसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया। CD अगेन। CD आंसर है। CD तो है नहीं। CE कह रहे हो क्या आप? सी नहीं है। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा है। सो नन ऑफ दिस मैच। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है इसमें से नन ऑफ द मैच आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। मूविंग हेड तो ये लेवल थोड़ा सा आपका हाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीडी। बीडी आंसर आया है। यस बीडी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो शुभम का आंसर सही है।
Rajesh also given the same answer. BD. Next question. ए बी बी हो गए, ए एफ कह रहे होंगे आप, नहीं, नन ऑफ द दिस आर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट। उनका लेवल हाई है, ये जो मैच द फॉलोइंग है, सो वी आर हैविंग हाई लेवल ओवर हियर। कुछ चीजें इजी मिलेंगी तो कुछ आपको डिफिकल्ट भी मिलेंगी। ये ऑप्शन आ रहा है, ए एंड बी, यस, वेरी गुड। So this is the right answer by given by you student. Nice. Next question. So select the appropriate phase or connector from the three option provided that can be used to create a single sentence by connecting the two given sentence without changing their meaning. So we need to connect these two sentences by using the word over here without changing the meaning. मीनिंग चेंज नहीं आपको करना है, इसको कनेक्ट करना है। सो विच कैन यू कैन, या तो अप्रोप्रिएट फेज हो सकता है या वो एक कनेक्टर हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। अंतर आएगा इससे क्या?
तो एक तो कंफर्म है अच्छा कुणाल अर्गो मींस अर्गो ARGO अर्गो। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अ, उसके बाद मतलब एक होता है हैंस हैंस प्रूव्ड देयर फोर लाइक दिस अर्गो। वन और थ्री आप कह रहे हो कि वन और थ्री, वन और टू। टू एंड थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अर्गो एंड ड्यू टू दिस स्ट्रगल, तो ये भी थोड़ा सा आपका हाई लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द कंट्री लिविंग लाइक अ ट्रेवलर मीन्स नथिंग, नहीं ये आपका नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। नॉट टू मेंशन दैट he wouldn't, not to mention that living like a traveler means avoiding the job entrance anxiety, not to mention that he wouldn't observe over yes। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा फिट बैठ रहा है, तो वन और टू। हाँ ये रहा ना, दूसरा दूसरा ये रहा। तो दिस इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट। फोर क्यूबिक धोती। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लर्क है उसने जो कपड़े पहने हैं वो है धोती, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने जो वेस्टर्न स्टाइल आपका जैसे कोट पैंट वो अपने यहाँ पे इन्होंने है पहना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस कनेक्टर होगा दैट विल बी कॉन्ट्रडिक्टिंग। तो नॉट स्टैंडिंग विद एग्जीक्यूटिव ये भी आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये भी आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ऑन द अदर हैंड ये भी आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दो चीजों को यहाँ पे हम आपस में मिलान मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सब सही होना चाहिए, ऑल थ्री। वन या थ्री, वन थ्री, वन या थ्री तो ऑप्शन नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से वन टू थ्री होना चाहिए। सब कुछ आपको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस यू कैन इजिली आंसर। प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ह्यूमन ब्लड एंड प्रेजेंट इन, ठीक। अब देखो इसका जो सेंटेंस वाला है स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज बोला, प्रूव इट फ्रेज। तो वी कैन स्टार्ट द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक मॉलिक्यूल, द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। एंड दिस कुड लीड टू दिस डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा वाला मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है, बट तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ये रहा। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर आएगा तीसरा, यस। तो दीपक का आंसर है थ्री ओनली, शुभम ऑल्सो थ्री, कुणाल थ्री। अरे वेरी गुड कुणाल, क्या बात है, ओनली थ्री स्क्रॉल प्लीज, वेरी गुड। महेश, गुड गुड। ओके सो यू हैव गिवन द राइट आंसर, गुड। अब देखो फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ये मस्ट, कुछ भी हो जाए इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। नो मैटर व्हाट हैपन यू नीड टू अटेम्प्ट दिस। सो दिस इज इजी पीजी। तो यू नीड टू रीड एंड यू नीड टू गिव द आंसर, सो हियर वी विल इंप्रूव आवर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो नाउ यू नीड टू गिव द आंसर ओवर है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। तो ऑप्शन ए मैं यहाँ पर बताता रहूंगा। तो ए ऑप्शन का क्या है इन योर ओपिनियन, ठीक है।
ए, ए का फ्रीली फ्रीली, वेरी गुड 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 गुड। ठीक है, बी ऑप्शन दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट बी, बी का बताओ। ये थोड़ा सा वर्ड मिलते मिलते लग रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट पार्ट में तो नहीं होगा, ए या सी डी। ए या सी, देखो ट्रांसपोर्ट तो मेरे को नहीं लग रहा। ट्रांजिस्ट, हाँ ट्रांजिस्ट हो गया यहाँ पे। ट्रांजिशन लगा दिया। बी, बी किसने आंसर दिया था? नहीं, डी नहीं है, बी इसका आंसर है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। सी, सी का ए, ए, ए क्या बात है, सब ए कह रहे हो। तो ए लगा देते हैं यहाँ पे, सी का ए, ठीक है। मूविंग अहेड, डी। डी डी डी, क्या बात है, यहाँ पे सब डी लगा, नहीं तो हो गया गलत हो गया। ठीक है, मूविंग अहेड, ई। ई का बताना है आपको, ई का। ठीक है, ऑफ एनी डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है, बोर्न होमी। तो ये हल्का सा हाई लेवल इसने दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ। एफ बी, पॉजिटिव, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस। जी।
बी टेरिटरी। वेरी गुड। एच। एच का इंक्रीजिंग डी, विकास का डी आ रहा है। इंक्रीजिंग विकास ने कह दिया तो सही होगा। नेक्स्ट, शुभम का आंसर नहीं आया क्या? शुभम आंसर इस बार शुभम। आई। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट डी। बी बी कह रहे हो क्या आप? शुभम का आंसर कहाँ? शुभम नहीं आ रहा है क्या? शुभम 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 शुभम, ठीक है। ओके। जे, लास्ट क्वेश्चन। जे। ए का ए और ई प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी ईश्वर सेकंड लार्जेस्ट रिलेटिव ग्रुप बी है। शुड बी प्रायोरिटी कीप गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये आपके इजी पीजी क्वेश्चंस थे। तो इसमें मतलब इट इज नॉट लाइक कि सबके सब आपके सही होंगे, बट आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे मेरे हिसाब से। आउट ऑफ 10 आपके 5 क्वेश्चन तो सही रहे होंगे। राइट। नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस तो अब अपने एंड पे आ गए हैं। 49 सो सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब ये जो है ये आपके 1 मार्क्स में आते हैं, और बहुत ज्यादा चांस होता है कि इसमें आपका सही होगा। 49 क्वेश्चन। यस, विकास ने कह दिया ई है। ओके। देखो मेरा तो आंसर आ गया। क्या, मेरा तो आंसर आ गया। आपका आंसर आया क्या? डी। क्या बात है, दीपक का आंसर आया डी। देखो इसमें देखो, व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक ओवर है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास में टाइम कम होता है। इसमें देखो जो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने देखा, मैंने इसको रीड किया, ईच इंडिविजुअल और ग्रुप, इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर। यार ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं। इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर ईच इंडिविजुअल इन ग्रुप, मतलब बी के बाद में ए आएगा 101%। मेरे को मतलब फील हुआ कि इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर ईच इंडिविजुअल ग्रुप। फिर भी ट्राई कर लेते हैं क्या बी के बाद में कोई और आ सकता है। बी के बाद में इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर पॉल्यूशन, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा। इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर एज लॉन्ग एज फिट, नहीं हो रहा। इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर अ सीरियस प्रॉब्लम, नहीं फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब बी के बाद में 100% ए आएगा। ऑप्शन देखो बी के बाद ए का है, बी ए नहीं, बी के बाद में ए आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम। लेस टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, आपका आंसर मुझे चला था। ठीक है, लास्ट एज लॉन्ग एज बी, हाँ,
यस, एज लॉन्ग एज, हाँ ये भी अच्छा है, एज लॉन्ग एज से भी आपका हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। या हो सकता है कि मैं आंसर दे दूं आपसे पहले। एसी 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 का है, मेरा मेरा एसी है, आपका क्या है? एसी एसी एसी। बी बी बी, क्या बात है, तो मेरे से पहले आंसर दिया दीपक ने। वेरी गुड दीपक। सत्या लिटिल बिट इनकरेक्ट ओवर है। देखो, ए सी, देखो आपको मिल गया हुआ। इट इज क्रूशियल नाउ टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन, ठीक है, इन vernacular without any further delay and ensure quality education। मैंने देखा ई के बाद में कुछ, ई के बाद में या तो ऑप्शन देखो, ईडी मैच कर रहा है, इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मैच नहीं कर रहा। सीडी हो रहा है आपका, मैच हो रहा है सीडी, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन वर्नाक्युलरी विदाउट एनी, यस सीडी मैच कर रहा है। डी के बाद में ई, डी के बाद विदाउट एनी इंश्योर, देखो डी मैच नहीं कर रहा आपका, डी और ई मैच नहीं कर रहा। विदाउट एनी इंश्योर क्वालिटी, डी ई मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपका डी ई था, वो इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। ओके, ए सी मैच कर रही है दीपक। Okay, so I hope from this video you learned something. So English में अब आपके हिसाब से देखो, कुछ क्वेश्चंस इजी थे टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड कुछ क्वेश्चंस जिनका लेवल हाई था। बट ये जो 50 क्वेश्चंस है, इनमें से मैं ऐसा मान सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप 10 क्वेश्चन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे मिनिमम। अब इसके ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आपका वोकैब कैसा है, आपका आरसी कैसा है, और आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो कैसा है, एंड देन आपने कितना प्रैक्टिस किया है। तो आई होप दिस PYQ memory based paper give you an idea how the exam is going to be happen. Again I wish you very all the best। वीडियो अच्छा लगा हो so do let me know, ठीक है। सो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।